हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हो। एंड ओके, सो टिल प्रीवियस लेक्चर वी हैव completed the basic whatever the foundation required for this particular chapter. And today what we will be doing, we'll be almost completing this chapter. Okay, today we will be almost completing this chapter. At the end I will be telling you कि there are few word problem what to do for that. Okay, so in this particular, now when we are moving today in this today's session of the lecture, we will be finding the feasible reason. They will be asking you find the solution of the equation, such that they will be asking you find the feasible reason. Okay, so for that you know first we have to वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना और कुछ नहीं करना है. So for that you know कि we must be knowing this 3x plus less than equal to 18 whatever they have given. इसका x and y we must know, right? तो सबसे पहले हम लोग x and y निकाल लेंगे. x y x comma y. So x equal to 0 I will be putting, तो y क्या हो जाएगा 18, right? x equal to 0, 3 into 0 plus y equal to 18. So y will be equal to 18. y equal to 0, y equal to 0 when I am putting, so 3x will be equal to 18 ऐसा होगा. तो x will be equal to 18 upon 3 which is 3 6 18 6. I am going little fast. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज ये सारे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये सब बता दिया है, राइट. द अदर थिंग इज दैट व्हाट 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 10. मोर देन आपको देख के समझ में आ गया होगा. ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक यू हैव रिटन की वेन एवर दे आर आस्किंग x मोर देन x less than, so we have to draw toward the origin. Whenever they are saying कि x is more than equal to, so you are drawing away from the origin. I hope you remember this. If not, check कर लो उसको. x y and x comma y. So x equal to 0 when I am putting, तो x equal to 0 तो y क्या हो जाएगा 10. ऐसे फटाफट आपको ड्रॉ करना एग्जाम के अंदर. y equal to 0, y equal to 0 तो x 2 नीचे जाएगा, 10/2 5, तो ये क्या हो जाएगा 5. तो दिस इज नथिंग बट 0, 10 एंड दिस इज नथिंग बट 5, 0. सो दिस हैज़ बीन सॉल्व्ड. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर वी हैव टू. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी प्लॉटिंग दिस ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, राइट. स्केल व्हाट वी हैव टू टेक, दिस इज like smaller number ना, तो scale 1 centimeter equal to 2 units on both axes we will be taking, right? Fine. Now what we will be doing, what is there, we have to say this particular. Okay, so I will be writing 2 4 6 8 10 12 14 16 18. I think this is the like maximum number. Here also 2 4 6, this is 8 10, this is my 12 14 16 and 18. This is my y axis, this is my x axis. Now what we have to do, 0, 18, तो x equal to 0, y equal to 18 यहाँ पे आ गया. एंड दिस इज 6, 0, तो x एक्सिस इज 6 एंड y 0, तो y विल नॉट गो अबव. एंड ये आई हैव टू प्लॉट. आप लोग स्केल से अच्छे से प्लॉट करना प्लीज. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय, आई विल नेम दिस पर्टिकुलर लाइन 3x plus y, this is less than equal to 18. Okay, now the other one is what, x equal to 0, so no, y equal to 10, yeah, over here. And the x is 5, so 5 somewhat over here it will come. And y equal to 0, perfect. So 10 comma 5. Now you have to like very carefully you have to like draw that particular shaded region, the solution, what they are saying. So we can see now, now we have to come over here. 3x plus y is less than equal to 18. So I have to shade, इसको ही पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ. इसका क्या नाम था, 2x plus y which is more than equal to 10. So 3x plus y less than equal to 18. 3x plus y is what, less than equal to 18. So I have to shade this particular
लाइन टूवर्ड्स द ओरिजिन, लेस देन में क्या था टूवर्ड्स द ओरिजिन, एंड 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 10, मोर देन आता है मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो हियर आई एम शेडिंग दिस टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसको मैं टूवर्ड्स द ओरिजिन लेके आ रहा हूँ, राइट. एंड दिस पर्टिकुलर लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब मैं उसको ऊपर लेके आऊंगा, और ये मेरा लाइक दिस विल बी माई एक्सट्रीम पॉइंट. तो इसके लिए ये एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, इसके लिए ये एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा. सो दिस पर्टिकुलर दैट यू आर गेटिंग, दिस particular slab that you are getting, this is your what shaded region, and this is only a what visible region, this is only what your solution. So you can just name it, you can name it A, B, and this is C, D. So you will be naming over here A, B, C, D is a visible region. You are getting it now? Wait, I am explaining again. This was what towards the origin, लेस देन था ना, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो आई शेडेड इट टूवर्ड्स द ओरिजिन, एंड 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 10, सो दिस वाज अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो आई हैव टू शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो अवे किया तो यहाँ आके रुक रहा था, एंड टूवर्ड किया तो यहाँ आके रुक रहा था, एंड दिस वाज माय बाउंडेड रीजन. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज माय शेडेड रीजन, दिस इज ऑल्सो फिजिबल रीजन, दिस इज ऑल, दिस पर्टिकुलर स्लैब को यू कैन ऑल्सो कॉल व्हाट योर सॉल्यूशन. ओके, चलो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल देखते हो. Okay, so the next question, they are giving you what 2x plus 3y is less than equal to 6 and x. I guess this is very easy, this even you can do it, right. आप उसको ट्राई करना क्या फिजिबल मिल रहा है. आई एम डूइंग द थर्ड वन, वो थोड़ा लेंदी लग रहा है. x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 21 and x plus y less than equal to 9. First I will be solving this. Okay, x, y, x comma y. So x equal to 0, y equal to 6 I will be getting. You are getting it now? x equal to 0, तो ये हट गया, y ये बचा 4y, तो I will shift 4, 4 6 24. y equal to 0, तो x I am getting 24, right. So 0 comma 6, 24 comma 0. Okay, now this one, this is my x axis, this is my y axis, and this is x comma y. तो my x equal to 0, तो y equal to क्या मिलेगा 21, my y equal to 0, x equal to 0, सिर्फ y बचा, y equal to 21. Now y equal to 0, so 3x, y equal to 0, this is 21, so x will be equal to 21 upon 3, 3 7s are 21, so this is my 3 7s are 21, perfect. So 0 comma 21, 7 comma 0. Now I am solving this particular stuff, x, y, x comma y, x equal to 0, x equal to 0, when I am putting x equal to 0, so y 9, when I am putting y equal to 0, so x equal to 9, perfect. Now I am drawing this particular stuff over here on the graph. Okay, this is my x axis, this is my y axis. Okay, now we can see the number are quite these are all number are multiple of like no, so we can take what you want to take. Scale थोड़ा बड़ा ले लेते, scale 1 centimeter equal to 5 units on both axes. We will be writing, perfect. Now what I will be doing, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 5, 10, 15, 20, and this is my 25. Okay, first you can see 0,6, right? So 6 somewhere over here will come. No, sorry, x equal to 0, y equal to 6. So 6 will be somewhat over here, right? And the other one is 24,0. So 24 somewhat over here it will come, comma 0. So x is 24, y is 0. So we will plot this particular, sorry, okay, don't forget to name it. Okay, just name it x plus 4y लेस देन इक्वल टू 24. दूसरा देखते हैं 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 21. तो इसका क्या है 0,21. सो आई विल बी गेटिंग 21 समवॉट ओवर हियर. एंड 7,0. तो 7 आई विल बी गेटिंग ओवर हियर समवेयर ओवर हियर, राइट? So this is 21 and this is my 7. Even you don't have to measure this एकदम वहीं पे आ रहा है point and all. No, you can plot roughly, like it should like दिखना चाहिए कि हाँ ये एक है, it can be considered, ऐसा दिखना चाहिए, right? That is acceptable. 9,9 ही आएगा. So x axis is 9. So this will be 9 over here and this is my 9 over somewhat over here. So I will be plotting this ये आपका 10 somewhere over here it will come. This is my 9. So ये ऐसे होते हुए जाएगा. This is my और ये दिस विल बी माई 9. आप प्लॉट करोगे तो आपका परफेक्ट आएगा. ओके, अब नाउ वी हैव टू चेक दैट योर शेडेड रीजन. सो एवरी इक्वेशन दे हैव गिवन इज लेस देन, राइट? Every equation they have given is less than ना, so it will be toward the origin, right? So यहाँ पे हम लोग ने मिस्टेक किया, मेरा परफेक्ट था. I guess it was more than तो away from the origin रहता है. देखो ऐसे आप लोग समझ जाओगे. लेस देन मतलब एवरी योर शेडेड रीजन मस्ट बी टूवर्ड द ओरिजिन. तो सारे आपके टूवर्ड द ओरिजिन ही आएंगे. एंड मोर देन रहता तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो आई थॉट कि सारा मोर देन है तो मेरा एक कॉमन रीजन मिलना चाहिए कि जो अवे फ्रॉम द, दिस इज योर लाइक आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज योर कॉमन सेंस. कॉमन सेंस आपका क्वेश्चन के अंदर सारे मोर देन है, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही आएगा, बीच में कोई नहीं आने वाला है. तो मुझे लगा कि मेरा मोर देन है, इसलिए आई वॉज लाइक मैनिपुलेटिंग दिस, राइट? तो यहाँ पे आपका ऐसे आएगा. ये आपका 10 था, ये आपका 10 था. नाउ विल सी, राइट? नाउ विल चेक कि देखो लेस देन मीन्स टूवर्ड द ओरिजिन, राइट? लेस देन मीन्स टूवर्ड द ओरिजिन. तो ये वाले का जो है दिस इज टूवर्ड द ओरिजिन, आई हैव टू ड्रॉ. इसका भी टूवर्ड द ओरिजिन तो ये पार्ट आएगा, इसका भी टूवर्ड द ओरिजिन तो ये पार्ट आएगा. तो तीनों का मिला के द कॉमन रीजन विच आई एम गेटिंग इज दिस वन, टूवर्ड द ओरिजिन. दिस इज योर लाइक आंसर. You can write this O A B C D. So you can write O A B C D is a feasible reason, right? This is your final answer. That's it. Try और मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आप लोग को. मोस्टली यहाँ का मैक्सिमाइज मिनिमाइज का मैं आप लोग को ज़्यादा देने वाला हूँ क्योंकि वो 100% एवरी ईयर दे आर आस्किंग. वेरी रेयर यू कैन से कि वो नहीं पूछते. आई हैव एनालाइज लाइक योर प्रीवियस
10 years के पेपर्स को देखा है, उसको सोचा है बैठ के, एंड फ्रॉम प्रीवियस 5 years दे हैव बीन आस्किंग मिनिमाइज मैक्सिमाइज. तो वी आर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर स्टफ. चलो, so now we are doing the first one. So they will be asking you maximize. What they will be asking you? Maximize. Suppose they are saying you z equal to 11x plus 8y, right? And subjected to they have given you over here. तो वो सारा मैं यहाँ पे लिखता हूँ. पहला क्या है, x लेस देन इक्वल टू 4, y लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस y लेस देन इक्वल टू 6. परफेक्ट. एंड व्हाट दे हैव सेड कि x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0. तो दैट इज लाइक हिंट कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका सॉल्यूशन आने वाला है, राइट? So you don't have to do anything for that, you just have to draw. देखो हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसमें थोड़ी चीज़ें कुछ नहीं आएगी, एंड दैट यू नो एक्चुअली वो आपको पहले से ही आता है. साइमल्टेनियस इक्वेशन आई एम टॉकिंग अबाउट 9th और 10th दोनों में आपने पढ़ा था, फिर भी भूल गए हो तो अगेन आई एम डूइंग दैट. नंबर छोटा है तो वी विल बी टेकिंग स्केल व्हेन वी आर टेकिंग, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 unit on both axes. I'll be writing 1, 2, 3, this is my 4, 5 and 6. Here also 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Perfect. Now you can see कि first one they have given you x less than equal to 4. So x का answer will be someone who x is this x equal to 4. I have to just draw this particular line, vertical line. तो इसका आंसर क्या है? x less than equal to 4. Less than means toward the origin you have to draw. Now what they have given you y less than equal to 6 means ये आएगा. Less than means again you have to draw towards the origin. इसको we'll name it y less than equal to 6. Do you think I need to solve this? x की भी वैल्यू 6 आएगी, y की भी वैल्यू 6 आएगी. देख लो, चलो x y x y और x इक्वल टू 0 तो y 6 आएगा, x इक्वल टू 0 y 6, y इक्वल टू 0 तो x इज 6. ये हो गया 6, ये भी हो गया 6. Now I have to draw this particular line. Okay, this is what x plus y is less than equal to 6. Now you can see beta कि every line that we have drawn, all are what? Less than means all are what? Toward the origin means what? You have to draw this particular shaded region. ये भी towards the origin आ रहा है, ये भी towards the origin आ रहा है, ये भी यहाँ पे intersect कर रहा है तो ये भी towards the origin, मतलब ये common region हो गया. इसका and this one, all three line के common region क्या मिले? Towards the origin mean this. Towards the origin में mostly यही मिलेगा आपको. ओके, लेट मी नेम इट. ये हो गया माई ओरिजिन और इसका 0,0 है, राइट? यहाँ पे फिर ये मेरा दूसरा है a एंड दिस इज व्हाट 4,0 ना, हाँ. एंड दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
डू यू नो दिस कि यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 4,0 ही आएगा आई गेस, बट वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर स्टफ. उसके बाद देन वी आर कमिंग ओवर हियर, राइट, दिस वन. 3-4 मिल गए अपने को पॉइंट, एंड वी हैव टू फाइंड कि लाइक which is your maximize, which is we have to maximize ना, तो we have to find that point कि कहाँ पे maximum number आ रहा है अपना, और वो कैसे फाइंड करना है अभी बताता हूँ. तो इतना you have written ना, let me रफ वहाँ का, ये मुझे रफ करने दो. Now I want this line, right? I want this particular line over here कि यहाँ पे क्या आ रहा है, सब कुछ सही है ना, x इक्वल 4 हो गया, y 6 हो गया, दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज माई x एक्सिस, सब चीज़ परफेक्ट है, राइट. नाउ दिस पर्टिकुलर लाइन वी हैव टू फाइंड कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है. तो हाउ यू हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको कैसे फाइंड करना है कि यू हैव टू सी कि कौन सी दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो व्हेन यू विल सी कि आप देखोगे कि दिस x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x लेस देन इक्वल टू 4, ये दो लाइन है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो यू हैव टू सॉल्व दोज टू लाइन एंड यू हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये दोनों को. तो कैसे फाइंड करोगे, ये क्या है, x प्लस वाई लेस देन को भूल जाओ भी, इक्वल टू 6, जस्ट रिमेंबर, एंड क्या है x इक्वल टू 4, राइट. सो x इक्वल टू 4 है तो मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे y भी मिल जाएगा. सो व्हेन आई एम पुटिंग x इक्वल टू 4 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यू कैन नेम इट 1 2, you know that, right? Substituting x equal to 4 in this particular equation, तो 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो y आपका क्या मिलेगा, 6 माइनस 4, राइट. सो y आपका क्या हो जाएगा, 2. गेटिंग इट और नॉट, x आपको मालूम था एंड यू आर पुटिंग एंड यू आर लाइक एक्सट्रैक्टिंग दैट पर्टिकुलर y. तो x आपका 4 था और y आपका कितना आया, 2. एक अप्रॉक्सीमेटली यू कैन सी कि 2 यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है. तो ये हो गया. अब नाउ वी वांट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये तो अपने को मालूम है, सीधा सीधा दिख रहा है, जैसे ये बीच में कहीं है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 6 और x तो कुछ है ही नहीं, तो x इक्वल टू 0, तो 0,6, सब लाइन मिल गए, राइट, सब पॉइंट मिल गए. दिस इज 0,0, दिस इज 4,0, दिस इज 4,2 एंड दिस इज व्हाट 0,6, परफेक्ट. अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये मैं रब करता हूँ, ये प्लीज लिख लेना आप लोग पॉज करके सही से, ये मैं रब कर रहा हूँ. नाउ यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट की कहाँ पे मैक्सिमम आंसर मिल रहा है. देयरफॉर z which is this one at origin पे चेक करेंगे, which is 0,0. यहाँ पे यू नो कि सबसे मिनिमम तो यहीं पे आने वाला है, तो which will be 11 into 0 plus 8 into 0, आंसर विल बी 0, ये तो मिनिमम रहेगा. फिर z at a ना वी हैव टू फाइंड ओवर हियर. तो यहाँ पे क्या है 4,0, तो वी विल बी राइटिंग 4,0. अब वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस ओवर हियर, तो z विल बी इक्वल टू 11 into 0 प्लस सॉरी x एक्सिस 4 है ना, सो 11 into 4 प्लस 8 into 0. सो आपका z क्या आ जाएगा, 11 4 जा 44 एंड ये तो 0 हो गया. नेक्स्ट यू आर चेकिंग ओवर हियर, राइट, z एट, उसको क्या आप लोगों ने नाम दिया है, 0a, इसको a दिया था, राइट. तो ये हम लोग यहाँ चेक करना है, b, you can write c, whatever you want you can write. तो b पे you are checking, z at b which is what 4,2, right, 4,2. तो z you will be writing 11x plus 4y. So 11
इंटू 11 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2. So 11 4s are 44 plus this 16. How much you are getting? 44, 16, 60, right? So here what you are getting? 68. एयरप्लेन मोड पे करता हूँ. Okay. So 60 you are getting. अब नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, आई गेस वहीं पे आ जाएगा. लास्ट वन इज दिस वन. Z at C. तो व्हाट इज दैट? 0,6. सो 11x प्लस 8y, 11x प्लस 8y. तो यू आर राइटिंग 11 इंटू, आई होप ये दिख रहा है राइट? नहीं दिख रहा होगा. वेट. लास्ट आई एम चेकिंग एट, कहाँ पे लिखो उसको? आई एम राइटिंग ओवर हियर, यहाँ पे देख लो. Z at C. प्लीज़ थोड़ा आप लोग कम देख लेना सही से. Z at C लास्ट. तो Z इक्वल टू 11x प्लस 8y विच इज़ 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6. So I am getting 8 6 are 48. So Z will be equal to 48. So where you are getting maximum? Tell me where you are getting maximum number. Z at B 4,2. So this is the maximized number. ये आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ. दिख रहा है, परफेक्ट, वेरी गुड. सो दिस इज 60 राइट. सो आपने चेक किया, यू चेक इट. 0 पे तो मिनिमम ही रहने वाला है. यहाँ पे आपने चेक किया, फिर यहाँ पे चेक किया, फिर यहाँ पे चेक किया, तो आपको मैक्सिमम आंसर कहाँ पे मिल रहा है? दिस वन B 4,2. सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर मैक्सिमाइज. सो यू विल बी राइटिंग यहाँ पे फाइनल आंसर, यू विल बी राइटिंग therefore Z is maximum at B which is 4,2. That's it. This is your final answer. एकदम आसान है कि नहीं? अगर हम लोग ने बेसिक, when we started the basic, वो सारे लेस देन और प्लॉट करना, वो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताया नहीं होता तो क्या आपको ये मैक्सिमाइज करने आता? नहीं. ओके. सो एक और लास्ट क्वेश्चन करते, मिनिमाइज वाला. उसके बाद आई विल बी गिविंग यू द क्वेश्चन. देखो आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं. अगर फिर भी डिफिकल्टी आ रहा है सो मैं और क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को. मैं कम से कम मिनिमाइज मैक्सिमाइज के 10 क्वेश्चन तो मिनिमम मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए. और वो इससे थोड़ा डिफिकल्ट रहेंगे. Okay, fine. The last question for the day, Z equal to, they have given 3x plus 2y. ये तो सब सॉल्व करना पड़ेगा अपने को. एंड सब्जेक्टेड टू व्हाट दे आर सेइंग, 2x plus y मोर देन इक्वल टू 4. फिर 2x plus 3y मोर देन इक्वल टू 6 and 6x plus y more than equal to 6. Okay, no problem. चलो start solving. आप लोग सॉल्व करो, आप लोग खुद से सॉल्व करो, इधर मत देखो भी. ये तो आपको आ ही गया अभी. x इक्वल टू 0, y विल बी 4, y इक्वल टू 0 तो x विल बी 2. देखो ये सॉल्व करके वही आ रहा है क्या? 0,4
2 comma 0. Now when I am coming over here, this is x y, x comma y, x equal to 0. So y will be 3 2s are 6, y equal to 0. So y equal to 0. So 2 3s are 6. So 0 comma 2 and 3 comma 0. Perfect. Now I am solving this one. X y, x comma y, x equal to 0. So y will be x equal to 0, y will be 6, y equal to 0, तो x will be 1. So 0 comma 6 and 1 comma 0. परफेक्ट. ये मिल गया. क्या ये 1 0 0 1 इतना सब हलवा जैसा एकदम. I have to draw over here, right? Now scale we have to take. Scale इतना छोटे से नंबर है तो scale 1 centimeter equal to 1 unit on both axis. Maintain neatness in your examination, right? अभी हम लोग जो लेंगे उसमें भी you have to maintain that. I hope so कि ये जो संडे को टेस्ट है लॉजिक का, आई एम इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो. प्लीज़, इतना आसान है. सो लॉजिक तो यू विल बी गोइंग लाइक दिस. उसके बाद इसको भी कंबाइन करके टेस्ट ये संडे को लिख दो तो इसका लाइक ख़त्म ही हो जाएगा. नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज़ अ बिट लेंथीएस्ट चैप्टर. तो उससे पहले आपके जो पीछे के सारे लाइक थोड़े बहुत ये सब दिमाग में नहीं रहने चाहिए. यू जस्ट सॉल्व इट, प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लो, हटा दो, इसको हटा दो. तो दिस विल बी 1 2 3 4 तक ही है, नहीं और भी है, 5 and 6. This is also 1 2 3 4 5 and 6. What you have to do, what you have to do, 0 comma 4. So this is my 4 over here and 2 over here. ये मेरा लाइन हो गया. आई एम नेमिंग दिस पर्टिकुलर लाइन 2x plus y more than equal to 4. रिमेंबर अवे फ्रॉम द ऑरिजिन जाने वाला है. दिस वन 2 comma 3, तो ये ऐसे जाएगा. I will name this particular line 2x plus 3y equal to 6. 2x plus 3y equal to 6. उसके बाद 0 comma 6 means I will be getting over here and 1. So 1 यहाँ पर जाएगा तो ये ऐसे आएगा, राइट. अब ऑल आर अवे फ्रॉम मोर देन है ना, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो मैं इसको अवे करते लाता हूँ. इसका ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये लाइन भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ऑल आर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, राइट. इसको हम लोग ने नेमिंग नहीं किया, इसको भी नेम कर देते. यहाँ पे नेम कर देता हूँ ऊपर. आई होप ये दिख रहा होगा. यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ. इसका नेमिंग क्या था, 6x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 6. परफेक्ट. अब यू कैन सी कि आपका जो शेडेड रीजन है वही आपका फिजिबल रीजन है, वही आपका सॉल्यूशन है. ये आपका शेडेड रीजन है. सो दिस इज योर 1 पॉइंट. ये तो इजीली मिल गया 3,0. दिस पॉइंट वी डोंट नो, दिस पॉइंट वी डोंट नो एंड दिस पॉइंट वी नो 0,6. परफेक्ट. अब now our job is what, to find this line and this particular line. ओके. अब ये पॉइंट पे देखो कि एक तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, राइट. तो दोनों को पहले लिख लेते हैं. ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका इक्वेशन क्या है, 2x. उसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ. 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. इसको मैंने लिख लिया, दिस पर्टिकुलर लाइन को. एंड ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका क्या है, 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 4. 2x प्लस वाई इक्वल टू
4. अब now we have to solve this particular line and we have to get this point. So simultaneously इसको solve कर लेंगे, बचपन से आप करते आ रहे हो. ये दोनों सेम है तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, खाली माइनस करेंगे. अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना आप लोग. इसको मैं हटा देता हूँ. ओके, 2x दोनों सेम, माइनस तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल. 3y माइनस वाई कितना आएगा, 2y, राइट. और 6 माइनस 4 2. सो y क्या मिलेगा आपको, 1. 2/2, तो y विल बी इक्वल टू 1. अब y 1 मिल गया तो यू सब्सटीट्यूट एनीवेयर, उसी के अंदर सब्सटीट्यूट करके यू कैन गेट x. तो ये 1 है, ये 2 है. अगर आप जो नेमिंग करना चाहे कर ले, आप बड़े हो गए आप लोग. सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 1 in equation 1. So 2x plus 3 into 1 equal to 6. So 2x will be equal to 6 minus 3. 3 इसको उधर शिफ्ट करूँगा तो 3. तो 2x क्या हो जाएगा बेटा, 2x will be equal to 6 minus 3 3. तो x will be equal to 3/2. So I guess 1.3333 ऐसा कुछ आएगा आंसर. So ये हो गया x और y. तो आपका यहाँ पे क्या मिला, x यू आर गेटिंग 1.33 एंड y यू आर गेटिंग 1, राइट. अब द अदर पॉइंट इज दिस वन. ये पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा. फिर अब ये पॉइंट पे यू हैव टू सी कि कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो आई कैन सी कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज इंटरसेक्टिंग विच इज व्हाट, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस y इक्वल टू 4. प्लीज इसको अच्छे से लिख के स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके दिखाना है आपको. ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे. ये लाइन का क्या है, 6x प्लस y इक्वल टू 6. अब ये दोनों यू कैन सी ना कि सेम है, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना. तो ये कैंसिल हो गया, y 2 में से 6 जाएगा तो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 2 6 तो माइनस 4x आएगा. और यहाँ 4 में से लाइक यू विल सब्ट्रैक्ट 6 तो ये क्या आ जाएगा, -2. परफेक्ट. ये माइनस कैंसिल हो गया. 4x इक्वल टू 2, तो x विल बी इक्वल टू 2/4 विच आई गेस 0.5 आएगा आंसर, राइट. सो x आपको मिल गया 0.5. नाउ यू वांट व्हाट, y. तो y आपको चाहिए, प्लीज़ उसको बार बार बोला हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है. और ये सॉल्यूशन यू हैव टू शो. x मिल गया आपको 0.5, तो सब्सटीट्यूट इसको, लेट से 2 3 सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 0.5 इन इक्वेशन 2. सो 2x प्लस y इक्वल टू 4. सो 2 इंटू 0.5 प्लस y इक्वल टू 4. तो ये क्या होगा, 2 इंटू 0.5 क्या होगा, 1 होगा ना. कैसे, 0.5 को आई कैन ऑल्सो राइट हाफ ना, इक्वल टू 4. सो 2 कैंसिल 1 प्लस y इक्वल टू 4. सो y आपको क्या मिलेगा, ये 1 वो साइड शिफ्ट होगा तो 4 माइनस 1 3. सो हियर यू आर गेटिंग व्हाट, x इक्वल टू 0.5 एंड y इक्वल टू व्हाट 3. परफेक्ट. अब आपको सारे पॉइंट मिल गए माय डियर बच्चों, आपको सारे पॉइंट मिल गए. दिस इज 3,0, दिस इज 1.33 and 1, and this is what 0.5, 3, and this is 0,6. now what you have to do, अब this is very easy, right. अब you have to substitute over here. z इक्वल टू 3x प्लस 2y. यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 आप पुट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा. फिर यहाँ पे x की वैल्यू 1.33 एंड y की वैल्यू 1 डालेंगे तो कुछ आंसर आएगा इसका. फिर यहाँ पे आप पुट करेंगे 0.5 एंड 3 तो कुछ आंसर आएगा. फिर यहाँ पे पुट करेंगे 0 एंड y इक्वल टू 6. सो यू आर गेटिंग सम आंसर ओवर हियर. यू कैन नेम इट A, B, C, D एंड क्वेश्चन में क्या था, मिनिमाइज था, राइट. मतलब wherever you are getting the lesser z, wherever you are getting after putting point, wherever you are getting the lesser
z की वैल्यू, दैट इज द मिनिमम पॉइंट. सो वेरेवर यू आर गेटिंग, सो आप वहां पे क्या लिखोगे, z इज मिनिमम एट दिस और दिस पर्टिकुलर लाइन. सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू. यू विल बी पुटिंग, वो बहुत आसान है, सिर्फ z के अंदर x एंड y की वैल्यू पुट करके देखना कहाँ पे मिनिमम आ रहा है, एंड यू हैव टू टेल मी दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और आप लिख देना आंसर के अंदर. देयर आर फ्यू वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस आई विल डू, तो उसके अंदर आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो व्हाट वी विल डू, सो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर यू हैव टू बी ओवर हियर. आई फील लाइक हर नहीं, देयर आर लाइक मोर चैप्टर, फ्यू चैप्टर, उसके अंदर देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट फॉर विच यू नीड टू बी हियर. तो आप जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो वर्ड प्रॉब्लम में आपको एकदम अच्छे से ऐसे बैठा के दिमाग में आपके डाल के समझा दूंगा आपको, तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. अभी समझाऊंगा तो मे बी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा. इसके ऊपर मिनिमाइज मैक्सिमाइज वर्ड प्रॉब्लम पे भी मे बी क्वेश्चन आते, बट दिस इज तो लाइक फाइनलाइज, हर साल ऑलमोस्ट पूछते, तो वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो इसका मैं ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन आपको भेजता हूँ मिनिमाइज मैक्सिमाइज का. जस्ट सॉल्व इट. नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कम टू मी, मुझे डायरेक्ट कॉल करो, व्हाटएवर, आई विल बी लाइक व्हाट्सएप कॉलिंग, जो भी जूम वगैरह ये वो करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे आपके डाउट, राइट. ओके, चलो बाय, स्टॉपिंग हियर फॉर द डे. बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.